Hello dear students, today we shall complete chapter number 3, Ishwan the Storyteller, written by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman was one of the most celebrated cartoonists of India, and in this story we see Lakshman presenting a story dealing with supernatural powers. So in this story there are two characters. Number one is Ishwan, the main character, as you're watching here, Ishwan the storyteller. He tells the story to whom? किसको story सुनाता है? To his master Mahendra. Actually Ishwan was Mahendra's cook. ईश्वन जो है वो महेंद्रा का क्या है, कुक है, उसके लिए खाना बनाता है, सर्वेंट है घर का, ठीक है. तो ही ईश्वन हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स. ईश्वन की जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स हैं. दैट इज़ द मेन स्टोरी वी शैल सी हेयर. what type of characteristics skills Ishwan has in this story we shall understand through this story. Let us see the story in detail. The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites. Actually, what is the job of Mahendra? Mahendra was a junior supervisor. He worked for a construction company, and his duty was to look after the activities at the work site. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना पड़ता था जैसे उसको ऑर्डर मिलते थे. From a coal mining area to a railway bridge construction site. कभी कोयले की खान में, कभी रेलवे ब्रिज पुल बन रहा है वहाँ जाना पड़ता था. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. So in this way, Mahendra's job was not at the permanent place; it was a constant job. He used to go at the different places. Let us see about Mahendra. He was a bachelor. Mahendra was a bachelor. He was not married. उसकी अभी शादी नहीं हुई थी. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. उसकी नीड सिंपल थी, कोई ख़ास नहीं थी, और कैसी भी ओड कंडीशन अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. वेदर इट वॉज एन इल एक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो सर्किट हाउस हो इल इक्विप्ड जहाँ पर इतना ज़्यादा सामान नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, और मेक शिफ्ट कैनवस टेंट. मेक शिफ्ट कैनवस टेंट क्या होता है? टेम्परेरी टेंट. मेक शिफ्ट क्या होता है? टेम्परेरी टेंट हो, क्योंकि उसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना होता था तो वहाँ कोई परमानेंट हाउस नहीं होता, तो कैनवस का टेंट बना के भी रहता था. मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, चाहे वो स्टोन क्वेरी के बीच में है क्यों ना हो, वहाँ पर उसे काम करना पड़ता था. ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ. बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी, वेल्थ थी, दैट वॉज ए ग्रेट वेल्थ फॉर हिम, दैट वॉज हिज कुक, एंड हिज नेम वॉज ईश्वरन. Let us see about this Ishwaran, what type of person he was. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. इतना अच्छा ईश्वरन था कि जहाँ भी महेंद्रा की पोस्टिंग होती तो बिना कोई शिकायत जो है वो उसके पीछे पीछे चला जाता था, साथ चला जाता था. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. देखिए ये क्वेश्चन आएगा आपका कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र के लिए असेट कैसे था, हाउ, कैसे वो वैल्यूएबल था, यूज़फुल था. तो नंबर वन तो वो उसके लिए खाना बनाता था, ही कुकड. सेकंड इज़ ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स, एंड थर्ड इज़ ही वॉज चैटिंग, तो उसके साथ बातें भी करता था. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरी सब्जेक्ट्स. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज,
ऐसी ऐसी स्टोरी बनाती जिसका कोई एंड ही नहीं होता था, बहुत लंबी स्टोरीज। एंड अनेक्डोट्स, अनेक्डोट्स क्या होता है? वन नोट स्टोरी, जो एक ही बार में ख़त्म हो जाती है, वन एक्ट प्ले, स्मॉल स्टोरीज। तो वो सुनाया करता था ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। लेट अस सी फर्दर। Ishwan also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. Seemingly out of nowhere, in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वन में एक और खासियत थी, ही वॉज हैविंग एन अमेजिंग कैपेसिटी, उसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, सब्जियां उगा लेता था सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ ए डेजोलेट लैंडस्केप, चाहे वो डेजोलेट लैंडस्केप हो, वीरान इलाका हो जहाँ पर पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो वहाँ जाकर सब्जियाँ उगा लेता था। ही वुड मिराकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Miraculously, miraculously का मतलब होता है चमत्कारी ढंग से। कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, बहुत ही स्वादिष्ट डिशेज बना लेता था। विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती, एट द जिंक शीट शेल्टर, वहाँ पर पहुँचते जब, तो वहाँ पहुँचते ही जो है एक घंटे के अंदर वो खाना बना दिया करता, वो भी बहुत टेस्टी। ये उसके अंदर एक कैपेसिटी थी। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. In this para, we shall see the routine of Mahendra. The Mahendra was getting up early in the morning and leave for work after breakfast. Carrying some prepared food with him, he was getting his lunch box also, which was prepared by Ishwan. Meanwhile, Ishwan would tidy up the shed. और उस दौरान जब महेंद्र घर पे नहीं होता था तो ईश्वन क्या करता था घर पे? टाइडी अप द शेड, जिस शेड में रहते थे उसको क्लीन करता था। टाइडी अप का मतलब क्या होता है? क्लीन करना। ओके, नेक्स्ट इज वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता था। एंड हैव ए लेजरली बाथ, लेजरली बाथ का मतलब बहुत समय तक नहाना। पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, पूरियाँ बाल्टियाँ भर भर के अपने ऊपर डालता था ओवर हिज हेड। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और नहाते नहाते प्रेयर भी गाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इतने में लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग हु वुड रीड फॉर ए वाइल, और खाने के बाद थोड़ी देर के लिए पढ़ता भी था वो। बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ का मतलब सोना। दोपहर को कभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं, तो सोने से पहले वो पढ़ता भी था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, कौन सी बुक पढ़ा करता था? तमिल थ्रिलर, ये आपने याद रखना है। कौन सी बुक पढ़ता था? तमिल थ्रिलर। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस एक ही सिटिंग में। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वन इन ए थ्रिल। तो जो थ्रिलर पढ़ता था जिसमें कुछ सरप्राइजिंग इंसिडेंट्स होते थे, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होती थी, कल्पनाओं के आधारित होती थी, नरेटिव फ्लोरिशेस होती थी, एक्सप्लेनेशन होती थी, वुड होल्ड ईश्वर इन थ्रिल, वो भी उसको पूरा एन्जॉय करता था, कई बार सरप्राइज भी हो जाता था। नेक्स्ट इज हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड। नाउ कम टू द पॉइंट कि ईश्वर का जो खुद का स्टोरी टेलिंग का तरीका है, जिस चीज़ को वो खुद डिस्क्राइब करता है, वो भी बड़ा इन्फ्लुएंसिंग था। He was also influenced by Tamil authors. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. ये चीज़ आपने इसमें खास तौर पे ध्यान रखनी है। किस what type of storyteller he was? He was telling the stories with great suspense and a surprise ending. Okay, ये आपने माइंड में रखना है। Next, for example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, for example, अगर उसने ये बताना हो कि रास्ते में एक अपरूटेड ट्री, जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ जो कटा हुआ है, वो हाईवे पे गिरा पड़ा था, इतनी छोटी सी बात को
वो कैसे डिस्क्राइब करता था, और इस पे आपका क्वेश्चन भी है, बड़े ध्यान से सुनना है, कि एक पेड़ गिरा हुआ था, कटा पड़ा था हाईवे के ऊपर, सड़क के ऊपर, इस चीज़ को वो कैसे बताता था। लेट अस सी ईश्वरन द स्टोरी टेलर्स मेथड। क्या मेथड वो यूज़ करता था ईश्वरन स्टोरी टेलर, देखें ज़रा। ही वुड से, क्या कहता था पेड़ के बारे में, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, उसकी जो आईब्रोज हैं उसको आर्क्ड बिल्कुल ऊपर कर लेता था, गोल गोल हो जाती, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, हाथ यूं खोल लेता था जैसे कोई जेस्चर कर रहा है। क्या बोलता है, द रोड वॉज डिजर्टेड सर, द रोड वॉज डिजर्टेड, सड़क सुनसान थी, कोई भी नहीं था वहाँ पर, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं अकेला था। देखो बताने क्या जा रहा है पेड़ के बारे में, लेकिन बता कैसे रहा है, द रोड वॉज डिजर्टेड, सुननी सड़क और मैं अकेला। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक मैंने सड़क पे क्या देखा, आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन enormous bushy beast, बहुत बड़े बड़े बालों वाला बीस्ट एनिमल वहाँ गिरा पड़ा है, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, सड़क के ऊपर गिरा पड़ा। ओ माई गॉड, आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मेरा दिल तो यूँ कर रहा था कि मैं यहाँ से मुड़ जाऊँ, वापस भाग जाऊँ। बट एज आई केम क्लोज़र, जैसे ही मैं उसके पास गया, आई सा दैट, मैंने देखा, क्या देखा, इट वॉज ए फॉलन ट्री, पेड़ गिरा पड़ा था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज एंड स्प्रेड आउट, कुछ भी नहीं था, ड्राई ब्रांचेस थी वो गिरी पड़ी थी। मतलब स्टोरी को इतना क्लाइमैक्स पे ले जाकर कि अगले को यूँ लगेगा कि वाकई सड़क पे कोई भूत सोया पड़ा था, बीस्ट सोया पड़ा था, लेकिन था क्या, पेड़। सो दिस इज़ द स्टाइल ऑफ महेंद्र, ही वॉज टेलिंग द स्टोरीज विद ग्रेट सस्पेंस एंड सरप्राइज। तो ये ट्री की स्टोरी आपने याद रखनी है, इस पर क्वेश्चन भी है आपका। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ back in his canvas chair and listen to Ishwan's tales uncritically. महेंद्र जो है वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक, अब जो स्ट्रेच हिमसेल्फ बड़े एक्साइट होकर सुन रहा था, अब ये सुना कि पेड़ था तो वो पीछे स्ट्रेच हो जाता रहा, रिलैक्स इन द कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वंस टेल्स अनक्रिटिकली, और वो उसकी कहानियाँ वो सुनता रहता था, अनक्रिटिकली मीनिंग विदाउट एनी क्रिटिसाइजेशन। लेट अस सी फर्दर। ये तो एक स्टोरी थी, महेंद्र ईश्वरन के पास ऐसी बहुत सी स्टोरी हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। टिम्बर क्या होती है, वुड होती है, लकड़ होती है, कि जिस प्लेस से मैं आया था वो लकड़ी के लिए काफ़ी पॉपुलर है। एशियन वुड बिगन, अब इस तरीके से स्टार्ट करता, तो क्या कहता है, देयर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ घना जंगल था। द लोग्स वर आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट। लोग्स क्या होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो पेड़ काटते हैं तो उसके वेरी लॉन्ग वुडन पीस होते हैं, उसको लोग्स बोलते हैं, ट्रंक ऑफ द ट्रीज। होल्ड ऑन टू द लॉरीज, लॉरीज क्या होता है, व्हीकल होता है, बहुत बड़ा ट्रक होता है, लोडिंग ट्रक, तो उसके ऊपर जो लकड़ियों की जो लोग्स होते थे, वुडन लोग्स हैं, वो एलिफेंट उठा उठा के रखते थे। तो दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, एनिमल्स के बारे में बता रहा है, एलिफेंट्स के बारे में, वेल फेड बीस्ट मतलब वो बहुत अच्छा खाना खाते थे। when they turn wild even in the Ishwan says that when they turn wild, जब ये एनिमल एलिफेंट जो हैं वो पागल हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, महावत कौन होते हैं, जो एलिफेंट्स को कंट्रोल करते हैं, संभालने वाले, उनको महावत बोलते हैं हिंदी में। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. उनसे भी वो हाथी कंट्रोल में नहीं होते जब हाथी जो है वो पागल हो जाते हैं। यहाँ वाइल्ड का मतलब क्या है, मैड, ठीक है। After this prologue, Ishwan would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. After this prologue, ये शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन देने के बाद ईश्वन जो है एक इलेबोरेट एनेक्डोट, इलेबोरेट मतलब बड़े एक्सप्लेन करके, और अनेक्डेट मतलब वन प्ले स्टोरी, एक
एक ही बार में जो ख़त्म होने वाली स्टोरी है वो सुनाता है, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने ट्री की स्टोरी देखी थी कि ट्री की स्टोरी कैसे एक्सप्लेन करता है। ही वॉज कंपेयरिंग द फॉलिंग ट्री विद एन बिग बुशी बीस्ट। नाउ वी शैल सी द स्टोरी ऑफ एलिफेंट। ओके, तो एलिफेंट को कैसे एक्सप्लेन करता है, वाइल्ड एलिफेंट को, और किस तरीके से वो नरेट करेगा स्टोरी। लेट अस सी फ्रॉम द नरेटिंग स्टाइल ऑफ ईश्वरन। वन डे, story starts from here. One day a tusker escaped from the timber yard. टस्कर क्या होता है? एलिफेंट। एलिफेंट को ही टस्कर कहते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। टिम्बर यार्ड मतलब जहाँ लकड़ियाँ पड़ी होती, वहाँ से वो भाग गया हाथी। एंड बिगन टू रोम अबाउट, और वो घूमने लग गया। ठीक है, तो जब घूमने लग गया तो क्या हुआ उसके अंदर? स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, तो जितनी भी झाड़ियाँ थी उन सबको कुचलने लगा अपने पाँव से। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो क्रीपर्स थी, बेलें लगी हुई थी, सब उसने उखाड़ दी। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, जो भी ब्रांचेस थी पेड़ की, जो दिल उसके मन में आया उसने उखाड़ दी। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। दिस स्टोरी ही इज टेलिंग टू महिंद्रा। क्योंकि सर आपको पता ही है, जब एलिफेंट पागल हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है। ईश्वन वुड गेट सो caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of a mad elephant. अब ईश्वन स्टोरी सुनाते सुनाते, ये भी उसका एक स्टाइल आप लिखोगे जब इसका करेक्टर स्केच लिखेंगे आप, कि वाइल टेलिंग द स्टोरीज ही वॉज मेकिंग सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, कि ही वॉज कॉपिंग द रियल करेक्टर्स। उसको इमिटेट करता था, इमुलेट करना, कॉपी करना। तो जिस तरीके से एलिफेंट स्टैम्पिंग कर रहा है, जंप कर रहा है, तो बिल्कुल वैसे एलिफेंट की तरह वो एक्शन करने लग गया। तो देखिए एलिफेंट ने क्या किया। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन। आउटस्कर्ट्स क्या होता है? बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ द टाउन। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। फेंसेस क्या होता है? जो वुडन बॉर्डर्स होता है जिसके कोई एनिमल अंदर आ ना सके, इस तरह जिसको बाड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जो वुडन स्टिक्स की जो फेंसेस थी उसको ऐसे तोड़ने लग गए जैसे कि मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियाँ होती हैं। ही वुड कंटिन्यू, इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। तो उसके बाद जो एलिफेंट है वो मेन रोड पर आ गया। स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, जितनी भी स्टॉलें लगी हुई थी फ्रूट बेचने वाले, सब स्मैश कर दी, कुचल दी उसने। मड पोट्स, और क्या नुकसान किया? मड पोट्स, मिट्टी के जो बर्तन थे, एंड कप क्लोथ्स। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर मीन्स तितर बितर, इधर हेयर एंड देयर, इन पैनिक, डर के मारे इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। तो जहाँ स्कूल में चला गया एलिफेंट, उसके बाद बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, तो स्कूल में एंटर कैसे किया? ब्रिक की जो वॉल थी उसको तोड़कर एलिफेंट अंदर घुस गया। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लास रूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। द बीस्ट ग्रंटेड, एलिफेंट जो है वो इट वॉज मैड, वो गुर्राने लगा। वॉन्डर्ड अबाउट, इधर उधर घूमता रहा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, तो फुटबॉल गोल पोस्ट स्कूल के अंदर नेट लगा हुआ था उसको उसने उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर। तो एक पानी का जो ड्रम पड़ा था उसको उसने लात मारी और फ्लैटनिंग द ड्रम, बिल्कुल फ्लैट कर दिया उसको। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, श्रब्स क्या होते हैं? जड़ी बूटियाँ जो लगी होती हैं, छोटे छोटे पौधे, उसको उसने उखाड़ कर फेंक दिया। तो स्कूल में टीचर्स भी थे। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. इतने भी टीचर्स थे वो छत के ऊपर चढ़ गए, जो टेरेस होता है। From there they helplessly watched the depredations of the elephant. Depredations का मतलब जो तबाही जो है, डिस्ट्रक्शन एलिफेंट मचा रहा था। Teachers were watching from there. There was not a soul below on the ground.
नॉट ए सॉल, सॉल का मतलब होता है आत्मा, लेकिन यहाँ का मतलब है कि कोई एक बच्चा भी, एक आदमी भी नीचे नहीं था ग्राउंड के अंदर। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसपियर्ड। गलियाँ ऐसे खाली थी, एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन, कि उस शहर के रहने वाले सारे लोग, इनहेबिटेंट्स क्या होता है, पीपल, हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसे लग रहा था जैसे वो गायब हो गए हैं, कि उस टाउन के अंदर कोई रहता ही नहीं है। मतलब अपनी जान बचाने की खातिर सभी लोग अपने अपने घरों में, छतों पर छुप गए। अब ईश्वर क्या बता रहा है कि उस समय उसने क्या किया। कहता है कि सर, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. पता नहीं मेरे मन में क्या आया। I grabbed a cane. cane क्या होता है, स्टिक। मैंने एक स्टिक उठाई from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. तो एनिफल जो एलिफेंट है, मेरे को देखते ही उसने ग्रंटेड, जो उसने हुंकार भरी, और मिनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, पेड़ की एक टहनी जो है, और विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या होता है, सूंड। एक ट्रंक पेड़ का भी होता है जो बीच वाला हिस्सा, यहाँ ट्रंक का मतलब क्या है, सूंड। उसने ज़ोर से हिलाई। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, अपने पाँव को उसने ज़ोर से स्टैम्प किया, जोर से स्ट्राइक किया। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत मिट्टी उड़ाई उसने। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, एलिफेंट और भी बड़ा डरावना लग रहा था। अब देखो सस्पेंस के साथ स्टोरी बता रहा है। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, मैं एलिफेंट के पास गया, मेरे हाथ में डंडा था, स्टिक इन माई हैंड, आई वॉन्टेड टू प्ले इट्स बैंड। पीपल वर वॉचिंग द सीन, hypnotized फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। लोग क्या कर रहे थे, वॉचिंग द सीन, वो सारे सीन देख रहे थे। हिप्नोटाइज मतलब एक शुद्ध होकर, अट्रैक्टिव होकर वो उसको देख रहे थे भी अब क्या होगा। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। एलिफेंट की आंखें लाल थी, बिल्कुल रेडी था मेरे को कुचलने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, ट्रंक अपनी सूंड को ऊपर उठाया और जोर से उसने ट्रम्पेट आवाज़ निकाली। एट दैट मोमेंट आई वुड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड, और उस मोमेंट पे मैंने क्या किया, आई मूव्ड फॉरवर्ड, कि मैं आगे बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स मीन्स कलेक्टिंग द स्ट्रेंथ। मस्टरिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्टिंग। जितनी भी मेरे पास ताकत थी, मैंने सारी जो ताकत जो है, स्ट्रेंथ जो थी, मेरी फोर्स जो थी, पावर थी, उसको मैंने इकट्ठा किया, और मैंने क्या किया, स्टिक उसके हाथ में थी, वैक्ड, ही वैक्ड। लेट अस सी नेक्स्ट पेज। इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, जो उसका जो थर्ड टो नेल होता है उसके ऊपर उसने अटैक किया स्टिक के साथ। द बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर अ मोमेंट, स्टंड का मतलब होता है बिल्कुल स्टिल हो जाना। जैसे ही उसके थर्ड टो नेल पे मैंने स्टिक से अटैक किया, द बीस्ट लुक्ड स्टंड फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड, शिवर्ड का मतलब होता है ट्रेम्बल्ड, कांपना, एकदम से वो कांपा, पहले एकदम सीधा स्ट्रेट हो गया, हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब होता है फेल डाउन, ढेर हो गया, वहीं वो गिर गया। ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ईश्वर वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब ये स्टोरी बता रहा था कि वह हाथी गिर गया, तो यहाँ स्टोरी को क्या करता, वो अनफिनिश छोड़ जाता। एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, ओ सर मैं अभी आ रहा हूँ गैस ऑन करके, एंड वार्मिंग अप द डिनर। Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. रैप्ट अटेंशन मतलब बड़े ध्यान से, बड़े मज़े से जो है वो इंटरेस्ट के साथ स्टोरी सुन रहा होता था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो वहीं बीच में लटकता रह जाता था।
When he returned, और जब ईश्वरन वापस आता, ईश्वरन वुड नॉट पिक द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, जहाँ स्टोरी उसने छोड़ी थी वहीं से पिकअप नहीं करता था. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. महेंद्र को ईश्वरन को याद कराना पड़ता था कि कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी वॉज पेंडिंग. तुम यहाँ तक पहुँच गए थे, एलिफेंट गिर गया था, आगे क्या हुआ. तो जब उसको पूरा याद कराते तो फिर वो कहता, वेल अच्छा, ए वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. अच्छा यहाँ क्या, तो एक वेटनरी डॉक्टर जो पशुओं का डॉक्टर है उसको बुलाया गया, वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल को दोबारा रिवाइव होश में लाने के लिए उसको बुलाया गया. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, श्रग कैजुअली मतलब शोल्डर्स को यूँ करते हैं, बस नॉर्मली क्या है ना उसका, बस एक डॉक्टर को बुलाया गया, उसने उसको उठा दिया. सो 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल. और 2 दिन बाद जो है वो महावत जो है एलिफेंट को जो संभालते हैं वो उसको जंगल में वापस ले गया. सो महेंद्र उससे क्वेश्चन पूछता है कि यार ईश्वरन, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, कि तुमने ये कैसे मैनेज कर लिया एलिफेंट को, तुम्हें कैसे पता कि उसके थर्ड टो नेल पे मारने से ही गिर जाएगा, और किसी में पावर नहीं थी. हाउ डिड यू ब्रिंग आउट डाउन द बीस्ट. तो आगे से ईश्वरन क्या कहता था, इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज़ आर्ट, कि सर जापानीज़ आर्ट है, कला है. आई थिंक सर कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड. आई हैड read about it somewhere. I temporarily paralyzes the nervous system you see. मैंने ये कराटे की आर्ट शायद कहीं किसी बुक में पढ़ी थी, पढ़ने का शौकीन था ईश्वरन, तो मुझे पता था और मैंने टेम्परेरली क्या किया, पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, एलिफेंट का जो नर्वस सिस्टम है उसको पैरालाइज कर दिया था, तो वो बेहोश होकर गिर गया. सो नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर. ऐसा कोई दिन नहीं बीता था कि ईश्वरन जो है रिकाउंटिंग सम स्टोरी, रिकाउंटिंग का मतलब होता है दोबारा से याद करना, रिकॉल, याद करना, रिकॉल. सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, इसमें रिस्क होता था, हॉरर एंड सस्पेंस. ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी ईश्वरन की, ये आप लिखेंगे ईश्वरन के करेक्टर स्केच में. ईश्वरन स्टोरी वॉज फुल ऑफ पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. ये तीनों आपने लिखना है. ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग होती है वो किससे भरी होती थी, नंबर 1 एडवेंचर्स के साथ, नंबर 2 हॉरर के साथ, एंड नंबर 3 सस्पेंस के साथ ये भरी होती थी स्टोरी उसकी. When the story was credible or whether the story was credible or not. क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय. स्टोरी पे आप चाहे विश्वास करें या ना करें. महेंद्र एन्जॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र को बड़ा मज़ा आता था, बिकॉज ऑफ द इमीडिएट, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड. जिस तरीके से वो बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कॉपी करके वो बताता था, तो वो उसको बड़ा ही मज़े से सुनता था महेंद्र. ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स. और देखो ईश्वरन की जो प्रेजेंस है वो किसके साथ कंपेयर की गई है, कि जो ईश्वरन सीम टू ए मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टी. मेकअप मतलब होता है कमी पूरी करना, कमी पूरी करना, ठीक है. एब्सेंस ऑफ ए टीवी, टीवी की कमी पूरी करता था कौन, ईश्वरन. वहाँ पर क्योंकि टेम्प्रेरी कभी कभी टेंट लगा के भी रहना पड़ता, टीवी होता नहीं था, तो टीवी की जगह कौन लेता था, महेंद्र ये टीवी की जगह लेता था. कहने का मतलब वो बहुत ही अच्छे ढंग से स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करता था. तो ये एक थी स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसने अभी तक 2 स्टोरी बताई हैं, एक ट्री को एक्सप्लेन किया है और एक एलिफेंट, मैड एलिफेंट स्टोरी को एक्सप्लेन किया है. So this is the first part of the story, and on the basis of the reading of the first part, we will complete 4 questions. First question: in what way is Ishwaran an asset to Mahendra? As I told you, he was a cook, he was washing clothes, and he was telling some stories also.
तो इन दिस वे ईश्वन वॉज एन एसेट वेरी वैल्यूएबल फॉर महिंद्रा. This question you can do very easily. Second question, how does Ishwan describe the uprooted tree on the highway? Uprooted tree को कैसे explain करता है? As I told, what effect does he want to create in his listeners? किस तरह का effect वो create करना चाहता है? Full of suspense and surprise. These two questions. Third, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? एलिफेंट की स्टोरी को कैसे एक्सप्लेन करता है? डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? क्या ये रियल स्टोरी है या बस वो वैसे ही एक स्टोरी को नरेट कर रहा है? आपको लगता है कि सच में ऐसा हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर, वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्रास लिविंग क्वार्टर्स? तो टीवी की कमी को पूरा करता है, ऐसा हमने अभी पढ़ा है, तो वो आज इसके अंदर लिखेंगे. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. On the basis of the reading of first part, complete these 4 questions. Thank you. Have a nice day. Second part we shall complete tomorrow.